So hello everyone, Aditya here from Dark Fractal. So again हमारे as promise के साथ बकबक simplified में we have now Mr. Sumedh Mistry with us, and today we'll talk about blogging sessions. हमने try किया था last Wednesday last week, but the live got crashed, and as I promised on the live, we will do this, and now we are trying to get much more reliable platforms which we record the video previously, and in future we are planning to live stream also, but at this point of time we are recording it, uploading it to YouTube and converting into podcast, and obviously sharing on all social medias. So let me introduce him. So Mr. Sumedh Mistry has been an avid blogger. He has been doing blogging for years and years for multiple big names, big giants. One of them is Mozilla, and he is also an editor blogger for a tech and trade company, and क्या कहूँ, personal friend है ना, and we have been acquainted for many stuff from hardware से लेके software से लेके blogging से लेके. So मैं उन्हीं को hand over करता हूँ Mike. Please Sumedh, join us, and please give you a little bit of introduction, explain how did you start blogging and who are you and where you're coming from. Okay. Hi, Aditya. We are coming here again. So, starting from what I do, introducing myself, as you told to our viewers that I am Sumedh Mistry, a blogger. Yeah, but मैं ये कहना चाहूँगा in simple language that I am a hardworking guy. Okay, and cool. trying to be, just overpowering the things like blogging and doing stuffs on software basis as well. So yeah. So audience, let me know अगर just I'm saying कि ये अगर hard working guy, he is saying he is too modest himself. He works 24 hours. भाई को call करने का भी time नहीं है ना? And he's one of the most dedicated people I see in startup industry, and he already has a company. He already runs his own company. He's part of multiple ventures. He provides services to decades of people, decades of companies, and so just take him modestly. He's one of those guys which I see look into when I talk about industry. So let's come to the point quickly, Sumit. And Yes. blogging. So Yeah. blogging, how do you see as an years of experience जो आपने blogging को evolve होते हुए देखा है, खुद को evolve होते हुए देखा है इस industry में, how do you see blogging at this in 2020 today? Okay, blogging in 2020 is Yeah. not much difficult. मतलब उतना Okay. ज़्यादा ऐसा चीज़ नहीं है, पहाड़ तोड़ने वाली चीज़ नहीं है. अगर Okay. एक बार तुम ठान लो कि हाँ मुझे कोई भी टॉपिक पे लिखना है, in layman's language that we can say that कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को Yeah. जैसे कोई डायरी लिखता है, कोई जर्नल लिखता है, राइट, अपनी चीज़ें, अपने फीलिंग्स, अपने व्यूज और अपने रिव्यूज किसी टॉपिक पे अगर कोई देता है, राइट, और उसको Yeah. एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, वही एक सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉगिंग होता है. Yeah. सो उतना हार्ड नहीं है ब्लॉगिंग, एंड दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगिंग. अब Okay. आते हैं कि ब्लॉगिंग क्यों करना चाहिए. तो ब्लॉगिंग इसलिए करना चाहिए कि पहली बात तो वो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम का एक जरिया बन सकता है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये कि ब्लॉगिंग आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकता है जहाँ पे आप अलग तरीके से इवॉल्व कर सको. ये बेसिक चीजें हैं ब्लॉगिंग Okay. की शुरुआत करनी चाहिए. Okay, we'll come to the money aspects because there are very few people who actually can provenly claim that they earn something from their blogging experience. हर कोई हमारे industry में, and I know you are one of those people, and you have been training people like that also, just taking sessions on multiple institutes and multiple venues at multiple times. But let's just come to गो स्टेप बाय स्टेप, एंड पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि स्टार्ट, लेट्स से कोई अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है, सो हाउ डू डू दैट, कि फर्स्ट स्टेप है, बेबी स्टेप क्या है, एज इफ समबडी वांट्स टू राइट समथिंग, समबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस, लेट्स से सम कंपनी, कोई कंपनी ही है जो अपनी वेबसाइट पे सिर्फ कुछ डालना चाहती है, तो हाउ दे गो इनटू इट.
So what Okay. is the first baby steps? तो आपका दो क्वेश्चंस थे कि एक तो हम्म, एक पर्सनल इंसान हो, इंडिविजुअल इंसान हो, वो कैसे शुरू कर सकता है, और दूसरा हम्म, क्वेश्चन ये था कंपनी। पहले या मैं पर्सनल पे ही जाऊंगा, क्योंकि इस कोविड के टाइम में अगर किसी को ब्लॉगिंग शुरू करना है तो वो या एक पर्सनल बंदा और एन इंडिविजुअल कैसे शुरुआत करे, मैं उससे शुरुआत करूंगा जिस हिसाब से मैंने शुरुआत किया था, और या ओके कोई अदर इंडिविजुअल ब्लॉगर शुरुआत करता है। ओके वो कोई भी टॉपिक ले सकता है, ऑलराइट। इट वुड बी टेक्नोलॉजिकल, इट वुड बी फैशन ले लो, या फिर आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। और पहले शुरुआत में आप वर्डप्रेस की एक साइट है, वहां हम्म जाके अपना डोमेन पहले रजिस्टर करवा दीजिए। रजिस्टर ओके करवा दीजिए उसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसे भरने पड़ेंगे, पहली बात। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो जिनकी अभी उतनी कंडीशन नहीं है कि डोमेन के और होस्टिंग के पैसे ले सके। ऑलराइट, डोमेन और होस्टिंग से मुझे ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या, ओके राइट। तो डोमेन हम ले ले, तो डोमेन इज द वेबसाइट नेम, एंड होस्टिंग जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। और ज़्यादा सिंप्लीफाइड करके कहूँ तो डोमेन आप जब खाने बैठते हो तब आपकी जो थाली है वो डोमेन है, और उसके अंदर का जो खाना है वो आप होस्टिंग कह लीजिए। तो ओके हर एक इंडिविजुअल को जब ब्लॉगिंग शुरू करना है तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, राइट। वो खुद का हो या किसी और का हो, तो अभी हम किसी और वाले पे जाते हैं। किसी और वाले का मतलब ये है कि आप उनका जैसे वर्डप्रेस है तो wordpress.com लेंगे। जैसे मेरा नाम है तो sumedmistry.wordpress.com आएगा, आपके ओके वेबसाइट का नाम। तो भी उसके काइंड ऑफ सब डोमेन टाइप सिस्टम है which you get for free. राइट, या ओके। और ये चीज पूरा फ्री है, यू डोंट हैव हम्म टू गिव एनी पेमेंट टू वर्डप्रेस और उनका होस्टिंग पे। तो ओके ये स्टेप आप ले सकते हैं, मैंने खुद भी लिया था। वहां ओके पे आपका सब एक स्टैटिक वेबसाइट बनेगी जहाँ पे या आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, अबाउट अस भी होगा। अलग अलग थीम्स फ्री में मिलती हैं वहाँ, सो यू कैन डू दैट फॉर योर फर्स्ट स्टेप। ये हो गया अपना स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेप, जहाँ पे आप पेएबल चीज़ें करेंगे। पेएबल इन द सेंस, जैसे अभी थोड़ी टाइम पहले मैंने आपको बताया कि वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग खरीदना पड़ेगा, तो वो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज़ ओके आपको ऑनलाइन मिल जाती है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। GoDaddy करके हैं, फिर बिग रॉक करके है, होस्टिंगर करके हैं, वहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिल जाती है। इवन वर्डप्रेस प्रोवाइड्स यू होस्टिंग। तो cool यहीं से ही आपका सब हो जाता है। और ये स्टेप्स आपको इंटरनेट पे भी आप अगर थोड़ा सा सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में आपको ये चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपने ब्लॉग्स लिखना शुरू करिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये नहीं कि पहले आप खरीद लो डोमेन, सब हो जाए, ऑन एयर हो जाए वेबसाइट, उसके बाद लिखना चालू करोगे और उसके बाद पोस्ट करना चालू करोगे। पोस्ट का ओके मतलब आप अपलोड करना चालू करोगे अपने ब्लॉग्स। ये बहुत गलत चीज़ है। पहले अपने आप को तैयार रखो कि मुझे किस चीज़ पे लिखना है, किस चीज़ पे मुझे ब्लॉगिंग करना है, कि कौन से टॉपिक पे मुझे रिव्यू करना है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने जब शुरू किया था वर्डप्रेस के लिए, तब मैं रैंडम टॉपिक्स पे लिखता था। जैसे ओके व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग इज जो जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, दैट इज हम्म वीडियो व्लॉगिंग, VLOG। उसके ऊपर जी मैंने लिखा था, एंड्रॉयड के ऊपर लिखा था। बेसिक टेक्नोलॉजिकल टॉपिक्स पे मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद cool आई केम इनटू कोर टेक्नोलॉजिकल टॉपिक्स लाइक रिव्यूइंग मोबाइल्स, रिव्यूइंग लैपटॉप्स, रिव्यूइंग द टेक्नोलॉजिकल न्यूज़। इन सब चीज़ों पे मैंने शुरुआत की थी। ये चीज़ें बेसिक हैं, ओके। ओके अब कमिंग बैक टू द सेकेंड स्टेप, हमें क्या करना है। तो पहले तो अपना डेटा तैयार रखें। डेटा मतलब 10 ब्लॉग्स तो मिनिमम होने चाहिए आपके, ओके राइट, अलग अलग टॉपिक के।
आपके वेबसाइट में पेजेस भी होते हैं, ऑलराइट। अबाउट अस का Yeah. एक अलग पेज होगा, उसका भी आपको कंटेंट रेडी रखना पड़ेगा। फिर होता है आपका टेक्नोलॉजिकल ब्लॉग्स, नॉन टेक्नोलॉजिकल ब्लॉग्स के अलग होंगे, फिर आप रिव्यूज के अलग लिखेंगे, फिर आपको कैटेगरीज भी तैयार रखनी पड़ेगी। So do you think कि ब्लॉगिंग करने से पहले थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट भी आना चाहिए कि और थोड़ा, हाँ, थोड़ा बेसिक सीख लेना चाहिए, और उतना ओके कुछ हार्ड नहीं है। आप ओके अगर यूट्यूब भी कर लोगे, राइट, बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, वहां पे भी आपको या ये सब चीजें पता चल जाएगा। या फिर आप वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म ले रहे हो, मैक्सिमम लोग वही ले रहे हैं, मैंने भी वही लिया है अपनी वेबसाइट के लिए। वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म एक सही और अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप या अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं चीजें Yeah. अपने ब्लॉग के नहीं, लिए। why I'm asking this is because जिस क्योंकि हमने हमारे इस डिस्कशन का नाम भी ब्लॉगिंग इन 2020 रखा because we see these days in market is very क्योंकि हर तरीके से कंटेंट अपलोड करना इतना आसान हो गया है, बैकएंड सिस्टम्स इतने आसान हो गए हैं, डायनामिक और स्टैटिक वेबसाइट का चीज बदल गया है। वर्डप्रेस में आपने भले एक पेज ही रखा है सामने, मगर यू विल सी कि बैकएंड पे आपको पूरा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मिला हुआ है। तो इट्स काइंड ऑफ डायनामिक वेबसाइट। यू हाउ यू यूज इट, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम, right? राइट, And similarly, making money these days, obviously you can always, why I wanted somebody like you to come on the stage and discuss about it is because क्या हो रहा है कि सी अटैच करना एनालिटिक्स के साथ एंड ऑल इज वेरी इजी एंड काफी वो हो जाता है कि ठीक है, मगर मेकिंग एक्चुअल मनी 100 जितने पहले कंपैरेटिवली कम लोग ट्राई करते थे, उनमें से जो परसेंटेज था दैट वाज हायर। मगर आज जब हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं 2020 में, मेकिंग मनी इज अगेन दैट मच डिफिकल्ट, क्योंकि फिर लोग भी उसी हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। देयर आर सो मच कंपटीशन, देयर आर सो मच कंटेंट, हाउ डू यू राइट इट, वेयर यू राइट इट एंड ऑल। सो जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी डोमेन हम आपने जैसे बताया कि 10 मिनिमम होने चाहिए आपके ब्लॉग्स रेडी, और बेसिक स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट का कंप्लीट होना चाहिए लॉन्च करने से पहले। राइट। कूल। सो एक बार लेट्स से हमने कोई है, जैसे मैं, लेट्स से आई एम अ बिगिनर, लेट्स कंसीडर दैट होपफुली होपफुली राइट, एंड ओके, मैंने शुरू किया एंड मैंने 10 वेबसाइट बना ली, मैंने 10 ब्लॉग्स लिख लिए एंड एक वेबसाइट का बेसिक कंटेंट रेडी किया, एंड देन व्हाट आई हैव टू डू, लेट्स से आई लॉन्च इट, ठीक है, जैसे राइट, आपने कहा अब मैंने लॉन्च कर दिया है। नाउ आई हाउ डू आई गेट अहेड ऑफ द क्राउड, मैं अपने आप को एक अलग से स्टैंड आउट कैसे शो करूं? ओके, तो या प्लीज गिव सम लाइट ऑन दैट। right. So I was going to come on that. या That we can, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें हम जब खत्म कर ले, लॉन्च हो जाए, पर लॉन्च भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ठंडा हो, सिर्फ लॉन्च कर दिया, ओके ऐसा नहीं ओके होना चाहिए। ओके ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मेरा ओके पर्सपेक्टिव ये है कि हम जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसे पहले कंसिडर करें। क्यों? क्योंकि वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू ओके लॉन्च योर साइट एज वेल एज लॉन्च योर अनाउंसमेंट। एक बार आप ओके अनाउंस कर दो वहां पे कि इस डेट को लॉन्च होगी, तो आपके जो आसपास हैं, मतलब योर टीचर्स, योर स्टूडेंट्स, इफ यू आर अ फैकल्टी, और द इंडिविजुअल्स उनको पता चल जाएगा, जो आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं, वो इंडिविजुअल्स को पता रहेगा कि आप इस डेट को कुछ लॉन्च कर रहे हैं। तो जब आप लॉन्च करें, उस दिन भी लॉन्चिंग के बाद का आपका एक अलग से पोस्ट आना चाहिए कि मैंने ये लॉन्च किया है, मेरा काम देखिए, राइट। So you उसके लिए आप, digitize every step of yours. राइट, Yeah, cool. राइट, Yeah, please go ahead. I'm sorry I'm disturbing you ओके, बीच में। सो या ये स्टेप होना चाहिए। उसके Okay, बाद का स्टेप ये होता है कि आप अच्छे से पहले स्टडी कर ले न्यूज़ को, कि आप क्या लिखना चाहते हैं, राइट। फॉर एन एग्जांपल, आप कोई एक वेबसाइट को लेके मान के चल रहे हैं कि ये वेबसाइट है, यहाँ से मैं इंस्पिरेशन लेके लिखूंगा या okay, लिखूंगी, राइट। तो उस चीज़ को थोड़ा और ज़्यादा रिसर्च करें। फॉर एन एग्जांपल, एक मोबाइल फ़ोन पे हमने रिव्यू किया,
तो वो रिव्यू अच्छे से दूसरी जगह पे भी देख लीजिए कि ये चीज़ें सही है कि नहीं, राइट? तो गिविंग अ राइट इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ माइंड. अब हर एक ब्लॉग को या हर एक पोस्ट को रेगुलरली पोस्ट करते रहें, ये सेकेंड पॉइंट है. रेगुलर पोस्टिंग विल मेक योर व्यूअर्स मोर एंथू अबाउट योर वेबसाइट के बार बार और अच्छा कंटेंट दीजिए. जितना अच्छा कंटेंट देंगे आप, उतना अच्छा आपको रिव्यू भी मिलेगा और उतना अच्छा आपको व्यूज भी मिलेंगे. ये होता है आपका सेकेंड स्टेप. अब थर्ड स्टेप पे आते हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं. दैट इज द मेन पॉइंट, राइट? तो पैसे तो पहली बात इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे. मैं खुद पूरा 9 महीने तक वेट किया हूँ. उसके बाद मुझे कोई एक पर्टिकुलर पेमेंट मिला था. ओके. अब शुरुआत करते हैं. फर्स्ट कितना था, if you don't mind telling us? First was 800 rupees. Oh, Very that's nominal, nice यार. और very क्या? normalized price. Very अरे nominal price. मतलब अब आप बड़े लोग हो गए हो तो 8,000 रुपए ठीक है, मगर जिसको कुछ नहीं मिल रहा उसके लिए 800 ठीक है यार. नहीं यार, उतने ही बड़े नहीं हुए. Yeah, ऑन दी वे है. कह रहा ना, मॉडेस्ट है सर. ओके, कूल. तो हाँ, सो पहले तो किस हिसाब से हमें पैसे कमाने हैं वो उस पे जाते हैं. तो पैसे कमाने के कोई भी वेबसाइट से, राइट, 3 वेज हैं. एक तो है एचसीओ, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. दूसरा है अपना एडवर्टाइजमेंट और तीसरा है एफिलिएट मार्केटिंग. ये बहुत बेसिक चीजें होती है जो हर एक वेबसाइट में होती है, राइट? तो मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा एसईओ से कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है. जब भी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप लोग सर्च कर रहे हो, कुछ भी अपना नाम भी सर्च करो, तो किसी और का, फॉर एन एग्जांपल, चलो मेरा नाम सर्च करते हो, तो अगर आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो पहला पेज जो होगा गूगल सर्च में वो सिर्फ मेरा ही दिखाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने अपने खुद के नाम पे एचसीओ फ्री टूल मारा हुआ है, राइट? सो एचसीओ इनबिल्ट करने के लिए आपको अपने वेबसाइट के टूल्स भी मिल जाए. फॉर जब हम वेबसाइट को शुरू करते हैं, राइट, तो वर्डप्रेस वाले वो टूल्स देते हैं. उसमें पेड टूल्स भी होते हैं और कोई फ्री टूल्स भी होते हैं, पर वो फ्री टूल्स कुछ मंथ्स के लिए ही चलेंगे, जैसे ट्रायल्स होते हैं. For example, give us some plugins like that. प्लगइन्स, हाँ, वो प्लगइन्स पे भी आऊंगा. प्लगइन्स पे भी आऊंगा. So you are talking about पहले different. समझाने दीजिए कि एचसीओ क्या है. Okay. So you are sorry to interrupt you, but जब आप tools की बात कर रहे हैं तो आप inbuilt tools की बात कर रहे हैं जो WordPress में already available, जो WordPress में already available है, आप उन tools की बात कर रहे हैं? हाँ जी. Okay, cool. Yeah. Please continue. तो टूल्स पे मैं बाद में आऊंगा. पहले मुझे एचसीओ समझाने दीजिए. Okay. चीज क्या है? तो एचसीओ में भी 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है ऑन पेज एचसीओ और दूसरा होता है ऑफ पेज एचसीओ. ऑन पेज एचसीओ में हम जैसे जब भी कोई आपका वेबसाइट का नाम सिर्फ सर्च करेगा, .com या .in नहीं लगाएगा, सिर्फ नाम. फॉर एन एग्जांपल, जैसे टेक इंक्रेड है, बराबर, सिर्फ टेक इंक्रेड सर्च करे तो सीधा पहले हमारी वेबसाइट आनी चाहिए. और कुछ पूरे वर्ल्ड में जितनी भी टेक इंक्रेड वाली चीजें हैं वो नहीं आए, या वो हमारा नाम थोड़ा बाद में भी आए, पर पहले पेज में ही आए, क्योंकि लोग पहले वो ही पकड़ते हैं. पहले पेज की ही चीजें वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, राइट? तो ये होता है टाइटल का ऑप्टिमाइजेशन. टाइटल ऑप्टिमाइजेशन इज योर डोमेन टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, राइट? देन दूसरे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी होता है. ऐसे बहुत सारे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के भी पार्ट्स हैं, ऑलराइट? और उसके बाद जो ऑफ पेज होता है वो आपको वेबसाइट के बाहर का एचसीओ होता है. जैसे आपने सोशल मीडिया मैंने कहा अभी, राइट? वो एक चीज है. फिर बहुत सी दूसरी गूगल माई बिजनेस का है. तो आप
अपना बिजनेस जब अलॉट करते हो, कोई इंडिविजुअल कंपनी अलॉट करती है, राइट, अलॉट इन द सेंस जब आप रजिस्टर करते हो गूगल माई बिजनेस पे, तब ये एसईओ उन्होंने गूगल ने खुद पहले से ही हुआ होता है कि आपकी कंपनी अगर कोई सर्च करे, फॉर एन एग्जांपल बेस्ट आईटी कंपनीज नियर मी, राइट, Cool. तो उस लिस्ट में आपका भी नाम आ जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ, राइट। ये चीजें होती है एचसीओ के लिए। इससे क्या होगा कि आपका जो भी चीजें सर्च करेंगे, राइट, कोई भी इंडिविजुअल सर्च करेगा आपका नाम या फिर आपके कंपनी का नाम, तो वो एचसीओ के कारण थोड़ा सा गूगल में उसको बाउंस मिलेगा। ये होता है फर्स्ट स्टेप टू योर अर्निंग्स। अब आते हैं एडसिंग्स पे। एडसिंग्स वो चीज है जहां से आप एड्स पे पैसे कमा सकते हैं। Okay. अब जब तक आपके व्यूअर्स रेगुलरली आपके वेबसाइट पे नहीं आते, तब तक आपको एडसिंग्स अच्छा नहीं मिलेगा। अब व्यूअर्स कितने आने चाहिए? तो रेगुलरली आपके 900 से ऊपर के व्यूअर्स होने चाहिए या 1000 के ऊपर के व्यूअर्स होने चाहिए, तब जाके आपको एक गूगल एडसिंग्स पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसका अलग से प्रोसीजर होता है, राइट। जैसे आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद के प्रोसेसेस हैं, आप Okay. सर्च कर सकते हैं। Cool. अब एक बार आपको एडसिंग्स मिल गया, उसके बाद वो लोग आपको एड्स देंगे। अब जरूरी नहीं है कि आपको 1 महीने में ही इनकम शुरू हो जाए। आपके जब तक $90 नहीं होंगे आपके उस एडसिंग्स के गूगल अकाउंट में, तब तक आपको पेमेंट नहीं आएगा। ये Okay. है Okay. नॉलेज एडसिंग्स का, राइट। Okay. अब बहुत से दूसरे एड्स एड वाली कंपनी भी है, जैसे सिर्फ गूगल एड्स नहीं देती, राइट, बिग रॉक भी देती है, वो रेडी भी एड देती है, राइट। उनके वेबसाइट पे जाओ, वहां पे अगर एडसिंग्स का भी एक ऑप्शन होता है, वहां पे आप क्लिक करो, आपको एड्स ये जो मैंने प्रोसीजर कहे वहां पे थोड़े अलग से हैं, बट सेम चीजें होंगी। ये चीज है एडसिंग्स। अब आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पे। एफिलिएट मार्केटिंग मेरे हिसाब से आगे फ्यूचर है। जैसे अभी लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अब आगे ऐसा टाइम भी आएगा जब एफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होगा। Okay. वैसे है ही, बाकी कंट्रीज और कंपनीज में ये सब चीजें बहुत आम हो चुकी है, पर इंडिया में ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और मे बी इन 2025 और 26 इट वुड बी अ ग्रेट मार्केट एज वेल। अभी भी है, पर लोग उतना उसको एक्सप्लोर नहीं करते, राइट। Okay. अब इसमें है क्या? तो जैसे एड्स हैं, वैसे ही ये लोग आपको मार्केटिंग एड्स एज वेल एज परसेंटेज वाइज पार्टनर बनाते हैं। पार्टनर कैसा? कि आप इतना एड्स रखो तो हम आपको इतना परसेंटेज देंगे। एड्स रखने के हैं, ध्यान दीजिएगा। और गूगल एडसिंग्स, उसमें आपको एड का क्लिक जो होता है, एक क्लिक पे एडसिंग्स पे उसका पैसा मिलता है। यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट पे आपकी एड रखने का वो आपको परसेंटेज वाइज पैसा मिलता है। ये दोनों चीजें अलग है, राइट। तो ये हैं एडसिंग्स और एफिलिएट मार्केटिंग। अब जाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पे। तो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारी कंपनीज आपको दे सकती हैं, जैसे अमेजोन है, गूगल है, ये सब कंपनीज देती है एफिलिएट मार्केटिंग। Okay. तो ये थी बेसिक चीजें। और हाँ, एक चीज जो मैं एडअप करना चाहूंगा वो है एचसीओ की, जो हमारी बात हुई थी टूल्स के बारे में। तो जो बेसिक टूल्स हैं वो मोज है, फिर गूगल थ्रेश है, ये सब आपको इनबिल्ट थोड़ी ऐसे टूल्स मिल जाएंगे, राइट। तो आप अपनी ही वर्डप्रेस का जो थीम होता है वो थीम आप लेंगे, उसके साथ आ ही जाएगा पैकेज में। उसका आपको अलग से थोड़ा अगर आगे जाएंगे ट्रायल्स के बाद, तो आपको अलग से थोड़ा पे करना पड़ेगा। Yeah, ये yeah. बेसिक चीज है। Cool. So, तो
Yeah, please continue. हाँ, so yeah, these were some basic things about how you can start and how you can, you know, settle yourself in this blogging world. ये चीज है. So let's say somebody has started now. They have set up everything. Now they are basically getting to know कि अच्छा ठीक है money ये हो जाएगा इस तरीके से, मगर एक constant flow भी important है. So how to do that कि while maintaining a blog कि हाँ एक page for example 100 visitors या 200 या 300 starting में visitors आ रहे हैं, maintaining that and then continuously growing that. How to do that? तो उसका आपका क्या experience है? मेरा एक्सपीरियंस 3.5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में, और जब जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, जहाँ तक मैं इन चीज़ों में से निकला हूँ, वहाँ तक मैं ये कह सकता हूँ. हाँ, पहले ये कह देता हूँ कि मैंने शुरुआत किससे इंस्पायर होके की, तो वो है हर्ष अग्रवाल. He has his website called Shout Me Loud, and he earns 12 to 21 lakhs per month. Per month. Okay. Cool. Through AdSense and through affiliate marketing, as well as through SEO. Okay. अब सोच लो कि इम्पोर्टेंट चीज है ये, और आप किस हिसाब से इसको आगे लेके जा सकते हैं. Okay. और जैसे आपने कहा कि चीज़ें स्टेबलाइज कैसे करनी है, तो बस आप अपना रेगुलर ब्लॉग्स करते रहिए, रेगुलर उसको मार्केट करते रहिए. यू कैन इवन सेंड इट टू योर व्हाट्सएप ग्रुप, और यू कैन सेंड इट टू और यू कैन पुट इट ऑन लिंक्डइन एज वेल. इन शॉर्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा सा यूज हो सकता है to market that and to stabilize it. So then, so basically एक complete आपको platform में convert करना है. Use every platform. अपने आप को एक platform में convert करो कि हर जगह से traffic आए. जहाँ से मतलब traffic आ सकता है, you focus on that and slowly grow that. Okay. So what do you think is future of ये तो चलिए हमने basic में गया कि हमने पूरा discuss कर लिया. But now every kind of text, every kind of thing is being digitized. We see not only individuals but companies also are. For example, people are posting now. For example, vlogs में देख लेंगे तो gaming से लेके memes से लेके whatever. And now people have started even writing blogs. For example, like a diary, as you mentioned earlier. So there are lots of traffic online. And especially agar I would like to focus on search engines because as Dark Fractal, we mainly provide services around it. As in your experience, what do you think is key to highlight yourself or to get ahead of the crowd? मैं दोबारा इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि ठीक है, वर्डप्रेस स्पेसिफिक है या HTML साइट है या Wix पे बना रहे हैं आप या whatever. For example, I just few days back got a request. हम free SEO audits करते हैं डार्क फैक्टर की साइट पे, है ना. तो उस पे क्या होता है कि we get lots of requests. और कुछ दिन पहले हमारे पास एक रिक्वेस्ट आया and the guy was a complete engineering guy and तो ऑडिट आया. आई चेक्ड हिज साइट में सब सही था. आउट ऑफ 100 आवर टूल्स स्कोर्ड हिम अराउंड 87. तो दैट इज अ गुड एसईओ कंपैरेटिवली, राइट, कि थोड़ा बहुत लिटिल बिट एडजस्टमेंट चाहिए. So I called him because we collect numbers like that also, so to call them properly and discuss with them what is the issue or not. And उस कॉल करने के बाद I asked with him कि क्या issue है, this is what I am seeing and all. He told me कि मेजर जो उनका इशू है वो लोडिंग का है और वो विक्स पे उन्होंने साइट बनाई एंड विक्स डजंट गिव देम अ बैक एंड एक्सेस. सो अब उसमें क्या इशू उनका, ये सबसे बड़ा इशू उनका ये हो रहा था कि वर्डप्रेस पे है तो आई कुड हैव सेंड हिम सम काइंड ऑफ कि भाई ये यूज कर लो, आई थोड़ा मैं लेट मी सी योर कोड, आई बग आउट क्या क्या है ना. HTML है तो आई वुड हैव ऑप्टिमाइज की मिनिमम चेक कर लो CSS फाइल और HTML कितने कॉल्स आ रहे हैं बार बार, है ना. जितने कम आपके कॉल्स आ रहे हैं दूसरी जगह से वो आपका साइट उतनी तेजी से लोड होगा, राइट. मगर विक्स में क्या करेंगे? ओके, सो अब कमिंग बैक टू टॉपिक दैट व्यूअर्स को भी बता दो कि विक्स क्या है. कोई नॉन ब्लॉगर्स भी हैं और नॉन डेवलपर्स भी हैं. तो गाइस, विक्स इज
नथिंग बट अ वेबसाइट जो आपको यू नो ड्रैग एंड ड्रॉप और यू कैन से कॉपी पेस्ट वेबसाइट बना के देती है, राइट? अब इस ये जो विक्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे यू कैन से एक यू नो लोअर बजट वेबसाइट आप कह लो कि आपको अगर 2000 में वेबसाइट बनानी है, 3000 में वेबसाइट बनानी है, तो विक्स इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके, अगर आपको यू नो थोड़े दिनों के लिए अगर आप बनाना चाहते हो तो मैं कहूँगा विक्स बेस्ट प्लेटफॉर्म है। पर आपको अगर, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, अगर आपको अगर आगे ही ले जाना है वेबसाइट को अपनी, तो विक्स आई वुडंट प्रेफर, राइट? एक नहीं, जगह से obviously, पहले आप, या एक जगह से आप पहले डोमेन ले लो, होस्टिंग ले लो और बेस्ट वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म ले लो, ये चीज बेस्ट रहेगी। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही थी क्योंकि जितना उसने पे किया उतना ही उसको मिलेगा ना। अब ये है उसका आंसर, राइट? सी स्पेशली इन सब चीजों में भी से क्यूट, ठीक है कि अच्छा है भाई है ना, मगर द थिंग इज स्पेशली बिगिनर्स में मैं आई सी लॉट्स ऑफ पीपल हु वांट्स टू ट्राई एंड ऑल, मगर फिर वो थोड़ा सा स्टेगनेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली कोई एक नया स्टूडेंट है या फिर समबडी हु स्टार्टिंग दिस ब्लॉग, वो उसने जस्ट स्टार्ट किया तो सिर्फ विक्स पे भी वो खर्चा करेगा, मतलब कि उसने खर्चा किया है 2-3 हजार या पापा से मांगे हैं या कहीं पॉकेट मनी बचाई है या व्हाटएवर, जैसे एक स्टूडेंट है तो उसने किया है। एंड देन आई अंडरस्टैंड कि इट इज एक लिमिटेशन है उसका कि विक्स का प्लेटफॉर्म का, क्योंकि मिनिमम बजट है और फिर उसको वेब डिजाइनिंग भी सीखना पड़ेगा, वर्डप्रेस में जाएगा तो द गाय वाज टेलिंग मी एग्जैक्टली दिस। आई एम बस मैं गलती से नाम वाम ना ले लूं, दिस आर वेरी clients are very close to my heart, magar I tried, magar the thing is the guy wasn't himself is a social media guy, matlab computer science background guy, and he was basically going ki yeah, magar it will take some time to convert it and we just did it. So abhi my question is ki how do you measure that? Okay, for example, let me complete the question so that viewers could understand. Maybe just for example, हम technical का है ना कि हम समझ जाएंगे कि where we are going, है ना, मगर ये लोगों के लिए है ना कि किसी बंदे ने शुरू किया, उसने विक्स पे पूरा बिल्ड किया, आपने 10 ब्लॉग से शुरू करने का, उसने आपकी बात सुन के 10 ब्लॉग से शुरुआत की, फिर साइट लॉन्च किया, उसने प्रॉपरली जो जो आपने इंस्ट्रक्शंस अभी बताया उसने सब फॉलो किए, करते करते उसके रोज के 1000 विजिटर्स उसने लाने शुरू कर दिए। मगर अब क्या हो रहा है, अब उसको 1000 से और बढ़ाना है, अब उसको एफिलिएट मार्केटिंग का ऐड करना है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब उसको लग रहा है यार विक्स में तो लिमिटेशन आ रही है यार, जो विक्स क्या, हम प्रॉपर्ली विक्स को गाली नहीं देते हैं है ना, विक्स इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, है ना, इट्स अ वेरी, मगर सी एक बार जब आप एक एंटिटी में कन्वर्ट होने लगते हो तो यू नीड मच मोर कंट्रोल ऑन योर सर्विस और योर प्रोडक्ट, सो वो थोड़ा सा इशू रहता है। हाँ, तो लेट्स से तो अब उसको उतना कंट्रोल नहीं मिल रहा है कि एज अ ब्रांड मैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज या सपोर्ट या ग्रो कर पाऊं, राइट, अपडेट कर पाऊं। सो अब वो कब ये डिसाइड करे एंड क्या ये उसको पहले ही प्री डिसाइड कर लेना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल स्टार्ट दिस काइंड ऑफ थिंग लाइक अ हॉबी कि यार ट्राई मारते हैं ना, लेट्स ट्राई कि क्या है, हाउ, अगर क्लिक हुआ तो क्लिक हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, है ना, दिस इज वन ऑफ दोस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड फिर तो वो उनको पहले ही डिसाइड करना चाहिए कि पहले ही दे शुड गो टू वर्डप्रेस और समथिंग लाइक दैट, कि उनको पहले की, क्योंकि वर्डप्रेस पे जाएंगे तो उनको थोड़ा सा लर्निंग कर्व भी चाहिए, थोड़ा सा आना चाहिए कि भाई थोड़ा सा, भले वर्डप्रेस आसान है मगर स्टिल इट नीड्स सम काइंड ऑफ लर्निंग कर्व, थोड़ा आपको 10-15 घंटे यूट्यूब पे इंतजार करना, वीडियोस देखने पड़ेंगे और ये सब करना पड़ेगा। 10-15 तो नहीं, बट अगर बिगनर्स हैं तो सिर्फ 5 घंटे या kind of, yeah. Matlab, I am talking a little bit here and there. So when do you think? So when do you think कि either they should think long term, अगर जरा सा भी वो सीरियस है लेके, तो they should start from something which have control, or after okay. So but the second thing is most of people जो actually गलती करते हैं, वो 100 उनके blogs हो गए and then वो आने लगा and then they start thinking कि अब control नहीं हो रहा है, right.
है ना? तो अब उनको ट्रांसफर करना है, तो इन दैट केस गिव अस सम सजेशंस आल्सो। ओके, अब जो क्या चीज कंट्रोल नहीं हो रही वो व्यूअर्स को बता देते हैं कि स्टोरेज कंट्रोल नहीं हो रहा उससे, ओके, बराबर कूल। है, यही चीज होती है, या राइट? या 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 अब आपने होस्टिंग लिया है, बराबर। अब होस्टिंग कितना, उसके भी पैकेजेस होते हैं, राइट? कि इतना जीबी का इतना पैसा है, आप इतना पैसा भरिए, आपको इतना मिलेगा, बराबर। होस्टिंग भी आप महीने महीने भर सकते हैं, या साल में भर सकते हैं, या क्वार्टरली भर सकते हैं, वो ऑप्शंस होते हैं उसमें। तो जो डिफिकल्ट चीज होती है वो होती है स्टोरेज। कोई भी पोस्ट में उसका जो अट्रैक्टिव फैक्टर होता है वो होता है उसका पिक्चर या वीडियो, राइट? अब ये दोनों का हमें उसका साइज भी देखना होता है, कुत्ते बराबर भौंक है। रहे हैं। कूल कूल, नहीं प्लीज गो तो अहेड, होता इंडिया का वही प्रॉब्लम है थोड़ा, बट दैट्स ओके। है। या या सो ये मैं जो टॉपिक पे आ रहा है या अपने प्लीज वापस, कंटिन्यू। या ये ये दोनों चीजें होती हैं, पहले तो पिक्चर और दूसरा होता है वीडियो। ये दोनों चीजें होस्टिंग के जो स्टोरेज होती है उसको ज्यादा यूज में ले लेती है आपके कंटेंट से ज्यादा, तो उसके लिए आपको होस्टिंग भी अच्छा सा लेना पड़ेगा। तो अब स्टूडेंट्स के लिए मैं एक अच्छा सा सॉल्यूशन देता हूँ, वो है गिटहब। ओके। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डेवलपर्स के लिए जहाँ से आप कोई भी कोड्स ले सकते हो, राइट? ये हो गया कोडिंग की चीज। जो मेन है वो है एजुकेशन पैक ऑफ गिटहब। वो स्कॉलरशिप्स देते हैं, ओके? मुझे भी मिली है स्कॉलरशिप, ओके, ओके। $50 की, बराबर है। और अभी लास्ट 3 महीने पहले मुझे $100 की भी मिली है। वो हमें ओके। अप्लाई करना होता है github.educationgiftpack.com, राइट? ओके। और अगर लिंक हो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे या देंगे, हम डाल देंगे, कूल, राइट? परफेक्ट। तो वहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी होता है, अपना अकाउंट खुद का बनाइए वहाँ पे, राइट? गिटहब पे। फिर ये इस गिट पैक पे जाइए। उसके बाद आपको अलग अलग होस्टिंग्स, अलग अलग डोमेन्स के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको स्कॉलरशिप में देते हैं वो लोग। ओके। तो मैंने जब शुरुआत की थी, वो techwin.com नाम की कंपनी नेम था मेरा, उससे मैंने शुरुआत की थी। हाँ, पर कुछ रीजंस की वजह से मुझे वो वेबसाइट बंद करनी पड़ी, ऑलराइट? पर मैंने शुरुआत इस हिसाब से ही की थी, सिर्फ मैंने डोमेन के पैसे भरे थे, होस्टिंग मुझे इस स्कॉलरशिप से ही मिल गया था, ओके, राइट? परफेक्ट। तो वो भी इंडियन ओशन नाम की और डिजिटल ओशन नाम की कंपनीज हैं, बहुत ओके। बहुत बड़े नाम है। या डिजिटल सो ओशन अवे इज अ बिग नेम, सो राइट? अवेयरनेस भी होना बहुत जरूरी है। देयर आर या ऑलवेज हैक्स अराउंड स्टफ कि यू कैन ऑलवेज फाइंड दैट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे अपना इवन कंटेंट सिलेक्शन में। सो चलिए अब बात करते हैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि राइट। ऑब्वियसली वी डिस्कस, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लॉगिंग का सबसे बड़ा पार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएशन है और कैसे चलाया जाए, कैसे ग्रो करना जाए, मगर एट द क्रक्स ऑफ इट क्रिएटिविटी मैटर्स, राइट? तो जब आप किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, सो हाउ डू योर, व्हाट इज योर अप्रोच कि जब कोई टॉपिक, व्हेन यू डिसाइड कि भाई इस टॉपिक के बारे में लिखता हूँ कि ये यार इंटरेस्टिंग है, या ये यार ट्रेंडिंग है, या समथिंग लाइक दैट, यू चूज सम ड्यू टू सम रीजन कि ये मेरा टॉपिक है, सो हाउ डू यू अप्रोच दैट? ओके, मैंने जैसे कहा था स्टार्टिंग में कि रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। कोई एक कूल। वेबसाइट को पकड़ के हम नहीं चल सकते। एक वेबसाइट इन द सेंस, अपनी वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अपना बेस है, उसको तो हमें लेके चलना ही है। बट जो हम रेफर करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि एक टॉपिक हमें मिला तो हम ऐसे ही लिख देंगे, नहीं। उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। तो जो रिसर्च हम कर रहे हैं, बराबर, तो वो रिसर्च कैसे शुरू होती है, रिसर्च करना मैं सिखाता हूँ पहले तो, कैसे रिसर्च करना है। कोई एक अच्छा सा टॉपिक आप देख लीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक पे आपको रिव्यू देना है या न्यूज़ देना है, राइट? अब उसका आप गूगल सर्च कीजिए, ओके? और उसके अलग-अलग वेबसाइट्स हैं, अलग-अलग रिव्यूज़ पहले ही आ गए होंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी पे ले जाएँ मुझे,
तो टेक्नोलॉजी के जो भी न्यूज है, जो भी रिव्यूज है, वो 6 घंटे में पुराने हो जाते हैं, राइट? तो आपके पास क्या रहा? 6 घंटे, जब आपको एक न्यूज रिलीज करनी है, राइट? तो अगर जब आप नई न्यूज रिलीज करेंगे प्लस आपने एचसीओ किया होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली ही वेबसाइट ऊपर आ जाएगा गूगल में। ओके अब ये 6 घंटे को एनालाइज कैसे करना है? पहले एक कंपनी को पकड़ लीजिए कि कौन सी कंपनी का आप रिव्यू देने वाले हैं। मैं ये टेक्नोलॉजिकल साइट्स के लिए कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं खुद एक टेक्नोलॉजिकल ब्लॉगर हूँ और मैं कैसे रिसर्च करता हूँ वो बता रहा हूँ, राइट? तो पहले तो फॉर एन एग्जांपल सैमसंग का नई प्रोडक्ट्स आ रही है, तो वो जब नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, राइट, सारे ब्लॉगर्स या फिर व्लॉगर्स, वीडियो ब्लॉगर्स, वो उसी वेबसाइट पे एक अच्छी सी नजर देखते रहते हैं कि अपडेट आ रहा है कि नहीं। जैसे ही अपडेट आ रहा है, आप उसी वेबसाइट को पहले एनालाइज कीजिए और उसके 1 घंटे में दूसरी वेबसाइट्स भी अपने ब्लॉग्स डाल देंगी। तो आपके पास 2 घंटे हैं अपने ब्लॉग्स को लिखने के लिए, राइट? और आई वुड लाइक टू मेंशन एज वेल कि आई हैड गॉन टू वन प्लस लॉन्चिंग इवेंट एज वेल, जो अहमदाबाद में हुआ था। वन प्लस का 7 प्रो आया था, तब मैं गया था रिव्यू करने के लिए। तो वो लाइव रिव्यू मैंने अपने वेबसाइट पे भी डाला था। तो ये चीजें हैं। आप, या फिर अगर कोई इनविटेशन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप एक चीज कर सकते हैं। जब भी कोई नया लॉन्च होता है तो ये लोग एक लॉन्चिंग इवेंट रखते हैं, उसकी टिकट खरीद लीजिए, बराबर? या फिर शोरूम चले जाइए। शोरूम में जब लॉन्च होता है फोन, और राइट, तब वहां पे जाके अगर आपको अलग से रिव्यू करना है, तो जब फोन्स खरीदने के लिए जो लाइन होती है वो खत्म हो जाए, उसके बाद जाइए 9-10 बजे रात को। कोई नहीं होगा, आप फ्री होंगे, यू कैन यूज द फोन एज वेल। वो लोग कोऑपरेटिव भी होते हैं, यू कैन टेक पिक्चर्स विद देम। ये चीज मैंने की हुई है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। सो या चलिए, नाइस। एंड सो आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ चीजें कवर की, एंड ऑब्वियसली ये डिटेल में भी हम काफी जा सकते हैं, मगर ऑब्वियसली क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन है तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू डिस्कस, देयर आर लॉट्स ऑफ माइन्यूट डिटेल। सो as an end note, what you would like to say to people who are thinking about to start a blog? क्या उनको करना चाहिए कि समथिंग को लास्ट पार्टिंग वर्ड्स? बस मैंने स्टार्टिंग में भी यही कहा था, एंड में भी यही कहूंगा, हार्डवर्क करते रहिएगा। और ऐसा नहीं कि ऐसे ही चलते रहिए, स्मार्ट वर्क भी करना होता है उसके साथ। वो मैंने टिप्स भी दी। चलो, perfect. So thank you everyone for joining us, and hope जो आजकल ब्लॉगिंग के अराउंड जो भी बकबक आप सुनते हैं, that might have got simplified with all these thoughts. We'll be coming with our next video on agriculture as we discussed, and hope you are liking these series. We are putting very hard work into it. मतलब थोड़ा बहुत, है ना, कोशिश तो कर ही रहे, है ना। एंड हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो गेस्ट हैं वो अपना प्रेशियस टाइम निकाल के अपने रेगुलर बिजी शेड्यूल्स में से थोड़ा सा टाइम दोस्ती के नाम पे, व्यूअर्स के नाम पे थोड़ा सा दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सुमित फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। And yeah, it was our pleasure. And hopefully आगे जब हम detailed episodes करने का plan करेंगे तो you'll give us some appointments, है ना? And okay, bro, है ना? So let's end this here. And this was a short and sweet conversation and very precise. And we like to keep this ourselves. हमारे agriculture वाले मिनाल साहब बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं, है ना? So this will be live on YouTube and all major podcast platforms, from Spotify to Google and everywhere. So thank you everyone for joining us. Bye bye. Have a nice day. Bye, Sumit. Thank you for joining us.